Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I, Ms. Sadia Iqbal, on behalf of Garrison Academy Senior Campus, welcome you all to ABSEC's online support program. As you all know that this is our 8th week, start of 8th week and day 1. And today we will be talking about we will be continuing our exercise 2.4 of course, and we are going to end it inshallah in today's lecture. First of all, there would be a question on chain rule. Question number 5. Chain rule, we have discussed chain rule in the previous lecture if you remember, and today we will be discussing question number 5 which is based on chain rule. तो पहले तो हम ये discuss करेंगे. Okay, then we have another topic today which is implicit relations or functions, this one. So we will be talking about differentiation of implicit relations or implicit functions, and then we will be doing question number 2 to elaborate this concept, right? So then inshallah we will be ending our exercise 2.4. So let us get started with chain rule. Okay, slide recap of chain rule. What was chain rule? We did this in detail in the previous lecture, but I have to comprehend it in this lecture as well ताकि थोड़ा सा recap solution हो जाए. Okay, now look at this. What was chain rule basically? Look at this. This is change in y with respect to change in x. If you have to find change in y with respect to change in x, but the functions given to you are y and t, let us say this one t, where this y is a function of t, क्योंकि change in y with respect to change in t find हुआ है, तो this would be a function of t definitely. Let us say this is t square, and look at this t is a change in t with respect to change in x. इसका मतलब है this t would be a function of x. Let us say it is 3x. Now functions given to you are y and t, but they are asking you to find dy over dx. तो वो कैसे find करेंगे? First, this would be found by taking dy by dt. यहाँ change in y with respect to change in t, and from here you are gonna get dt by dx, यानी change in t with respect to change in x. Now by multiplying this and this by applying chain rule, you will be getting dy by dx. कैसे इसको multiply करेंगे? देखें, you need dy by dx, मतलब dy in the numerator, और term है आपके पास dy by dt. So this would be multiplied with what? You need dx in the denominator. So dx in the denominator ये चीज़, और dt इधर. Now can I get dy by dx by multiplying these two terms? Yes. So इन दोनों के answers dy by dt और dt by dx का answer आप multiply करके you will get dy by dx. So that's how you use chain rule. Let us get started with the exercise. Okay. Of course we have to do this question number 2, but question like हमारा बाकी सब हो गया था. Question number 2 and question number 5 were left. Question number 2 will be done क्योंकि इसमें हैं implicit relations आपके सारे, maximum implicit relations, or sorry, this is not implicit relations या functions. इस ये question number 2, this is based on that, important question है. So we will be talking about this later on. We will be discussing now question number 5 which is about chain rule. तो और बहुत important question है, very important, ठीक है जी. So I'll be discussing here ये I'll be giving you main concept by using this as example, and then question number इसका third और fourth part we will be discussing this in detail. इनके मैंने images भी add किए हुए हैं, ठीक है. Then you will be remaining, and along with this part you will be having this as assignment. So let us get started with the question. Okay, now the question was differentiate, यहाँ पे लिखा हुआ था differentiate this with respect to this. क्या मतलब है? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस. पहले तो हम करते होते थे, अगर y फंक्शन है सपोज 3x - 2, तो हम कहते थे डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर होता था dy बाई dx इक्वल टू जो भी इसकी डिफरेंशिएशन होती थी, रिमेंबर. लुक एट दिस नाउ. इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन. टू फंक्शंस आर गिवन. आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज y, और इस y में फंक्शन है x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज t, एंड दिस इज़ t³. अब मुझे फाइंड क्या करना है अकॉर्डिंग टू देम? व्हाट डू आई हैव टू फाइंड? दिस इज़ माय फंक्शन y एंड दिस इज़ माय फंक्शन t. सो यानी ये y है और ये t है. अगर मैं उनका क्वेश्चन रीड करूँ, इट मीन्स नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t. सो व्हाट डू आई हैव टू फाइंड? आई हैव टू फाइंड डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t मीन्स dy बाई dt. मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है. आई विल बी फाइंडिंग आउट दिस थिंग बाय यूजिंग चेन रूल. क्लियर हो गया? कैसे करेंगे अब देखें जी. दिस इज़ t which is a function of x I can see, and this is y which is a function of x I can see. यहाँ से मेरे पास निकलेगा dy by dx when I'll be differentiating on both sides. यहाँ पे लगेगा मेरे पास क्या चीज़?
क्वोशंट रूल, राइट। मैं डायरेक्ट लगाऊंगी, अब तो आप लोगों की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमिनेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि डिनोमिनेटर है, और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव विच इज़ 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर डेरिवेटिव सॉरी विच इज़ 2x अगेन। न्यूमिनेटर को सॉल्व करें, what do I get, 2x cube, let me change the color, 2x cube minus 2x plus, I'm just opening the brackets, ये 2x cube minus 2x and this 2x into x square with minus, ये भी माइनस साइन के साथ होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ओके, डिवाइडेड बाय सेम डिनोमिनेटर, यही वाली चीज़ नीचे आ जाएगी। ओके, नाउ लुक एट दिस, 2x cube plus 2x cube minus cancelled out, minus 2x minus 2x, so what do I have here, minus 4x divided by x square minus 1 whole square. What is it? This is dy by dx. I got my one answer. Now what do I have to find? I have to find change in this t with respect to change in x. So वो कैसे find होगा? I would be getting differentiating on both sides with respect to x. So it would be dt by dx equals to 3x square. कैसे? पावर रूल लगेगा, 3 पहले आ जाएगा, x की पावर में से 1 माइनस 3 minus 1 is 2, so x square, further derivative of x which is 1. So what is my answer? 3x square. Now I got my answer of dt by dx. I already have answer of my dy by dx. How am I gonna get dy by dt? By using chain rule. ठीक है जी। अच्छा, ये आंसर्स हमने अपने थोड़े से याद रखने हैं। ओके, I had dy by dx equals to, sorry, x minus 4x divided by x square minus 1 whole square, and I had dt by dx equals to 3x square. ये दो मेरे आंसर्स आ गए थे, बट मुझे फाइंड करना है, टू फाइंड dy by dt। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन मैंने t कह दिया था और इसको मैंने y कह दिया था, तो आई हैव टू फाइंड dy by dt, यानी चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन t। सो दैट वुड बी, ये मुझे फाइंड करना है, मैं लगाऊंगी बाय यूजिंग चेन रूल। By using chain rule, how am I gonna get that? I have to do it this way, dy by dx, because I have dy by dx from here, so dy by dx would be multiplied with what to get dy by dt। मुझे dt डिनोमिनेटर में चाहिए, यहाँ लिख लिया, तो डेफिनेटली अगर ये dx है तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा, dx। So do I have dx by dt? No, but I have dt by dx, so इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। Let us check this out। पहले ये टर्म आ जाएगी, dy by dx की वैल्यू लगा लें आप, minus 4x divided by x square minus 1 whole square, I'm sorry for the writing, multiplied by this thing, बल्कि इसका रेसिप्रोकल, so it would be 1 over 3x square। so इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे and that would be your complete answer। और सिंप्लीफिकेशन भी क्या होगी, था 1 over 3x square into x square minus 1 whole square minus 4x was in your numerator, and this is the answer, this is your final answer, that's it। what is it? Answer of dy by dt। I hope you are clear enough with this detailed explanation, right? So in this part, let us do the next, like in this video part 1 we will be discussing rest of the two parts जो मैंने बताए थे। अब again you have to find the derivative of this, differentiation of this with respect to this। तो एक फंक्शन को आपने y कह दिया, एक फंक्शन को आप u कह दें, t कह दें, जो मर्जी कह दें, आप अपनी मर्जी से उसको नाम दे दें, ठीक है। So look at this now, what are we gonna do? This is, अच्छा जी, दिस इज़ अप टू यू। आपने इसको y कह दिया, इसको u कह दें, t कह दें, जो भी कहेंगे, आपको पता है वट एवर दिस मे बी इज़, आप इसको जो भी नाम देंगे, आप इसमें फाइंड यही कर सकते हैं, चेंज इन दैट फंक्शन। जो अगर आपने इसको u कह दिया तो आप du by dx फाइंड करेंगे, अगर आप इस फंक्शन को t नाम देते तो ये निकलता dt by dx। क्यों? क्योंकि चेंज इन t विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x फाइंड करते। अब आपने यहाँ पे जो इमेज दिया हुआ है, ये चेंज इन u विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x फाइंड होगा, तो फाइन, यू कैन फाइंड du by dx यहाँ पे बाय क्वोशंट रूल। आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है, ये एक्सप्लेन हुआ है क्वोशंट रूल। इफ़ यू कैन नॉट सी इट, आई कैन जूम इट इन फॉर यू पीपल, ठीक है जी। लुक एट दिस नाउ, दिस इज़ y, दिस वन, तो इसमें आएगा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, क्योंकि ये x का फंक्शन है। और अगर आप इसको u कहते हैं और इसको y कहते हैं, आपने
इस फंक्शन में लुक एट दिस इज़ y एंड दिस इज़ u, आपने इसमें चेंज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू ये, तो आपने फाइंड क्या करना है बाय चेन रूल, dy बाय du, ये आपने फाइंड आउट करना है। और ये किस चीज़ के नाउ लुक एट दिस इज़ y, ठीक है जी। आई हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। अब पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे y एंड दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू, अगर ये u होता तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन u का मतलब ये है। मैं अब यहाँ पे चेन रूल यूज़ करूँगी। y किस चीज़ का फंक्शन है मेरे पास, x का, सो दिस वुड बी dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड विद व्हाट, मुझे du चाहिए इन द डिनोमिनेटर, और u वैसे फंक्शन किसका है, ये यू कैन सी फ्रॉम हियर, x का फंक्शन है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, ठीक है जी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें फ्रॉम हियर, यहाँ पुट कर लेंगे, dx बाई du नहीं निकलेगा हमारे पास, निकलेगा du बाई dx फ्रॉम हियर, क्वोशंट रूल लगाने के बाद उसको रेसिप्रोकेट करके यहाँ पुट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट वुड बी आंसर ऑफ योर रिक्वायर्ड थिंग विच इज़ dy बाई du, अगर आप उसको u कहते हैं तो। अगर आप t कहते हैं तो अकॉर्डिंगली आंसर वुड बी चेंज्ड, ठीक है जी। क्या कुछ भी नहीं किया, इस पे क्वोशंट रूल लगा, उसी तरह से डिनोमिनेटर का स्क्वायर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर की टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमिनेटर विच इज़ 2x एक्स स्क्वायर का प्लस 1 का डेरिवेटिव, आई थिंक आपको पता है व्हाट वुड दिस बी, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले और पावर में से 1 माइनस इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x, वो क्या है 1, प्लस इस 1 का डेरिवेटिव इज़ 0, सो द आंसर इज़ 2x, ठीक है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव भी 2x ही होगा। सिंप्लीफिकेशन कर ली, ये सिंप्लीफिकेशन ये आराम से निकल आएगा, इट वुड नॉट बी अ बिग डील। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट फंक्शन विच इज़ u कह लें, t कह लें, जो भी है, इस पे भी अब आप क्वोशंट रूल लगाएंगे बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। क्वोशंट रूल अप्लाई करने के बाद, चूँकि हम ये डिटेल में बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दिस इज़ du बाई डी एक्स। अब अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया हाउ वुड यू अप्लाई चेन रूल ऑन दिस, that's how this is how you will apply chain rule on this, ठीक है जी। जो भी आप फंक्शन को नाम देंगे अकॉर्डिंगली, यू हैव टू मल्टीप्लाई द टू टर्म्स। इस वाली टर्म को आप देख सकते हो, हमने रेसिप्रोकेट किया, ये थी ये, और हमने इसको रेसिप्रोकेट करके यहाँ पे लिख दिया, वी मल्टीप्लाइड द टू टर्म्स एंड दिस इज़ व्हाट आवर आंसर इज़, ठीक है जी। लुक एट द फोर्थ पार्ट नाउ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जी, you are gonna name this as u, your choice, इसको u कहना है, t कहना है, your choice। इस फंक्शन को भी नाम दे दिया और इस फंक्शन को भी नाम दे दिया। यहाँ पे भी चेन रूल क्वोशंट रूल अप्लाई किया डेरिवेशन के लिए, यहाँ पे भी चेन क्वोशंट रूल अप्लाई किया डेरिवेशन के लिए। इसकी डेरिवेशन में थोड़ी सी किसी एक की एक्सप्लेन कर देती हूँ, डिफ्रेंसिएशन के वो कैसे करनी है, ठीक है जी। लुक एट दिस वन, इसकी मैं करने लगी हूँ। सो इट वुड बी dy बाई डी एक्स, डेफिनेटली हमने क्वोशंट रूल, वी हैव टू अप्लाई क्वोशंट रूल ओवर हियर, सो स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज़ dx प्लस d होल स्क्वायर, ठीक है जी। स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में क्या आएगा मेरे पास, लेट मी चेंज द कलर, न्यूमिनेटर में आई विल बी गेटिंग cx प्लस d एज इट इज़, c बीइंग कांस्टेंट, d बीइंग कांस्टेंट, a बीइंग कांस्टेंट, b बीइंग कांस्टेंट, कांस्टेंट्स हैं ये सारे a b c d, इनका कोई रोल नहीं है, ये एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है जी। ओके, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, अब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ए तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 1, प्लस बी है, बी का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0, वाई बिकॉज बी बीइंग कांस्टेंट, ठीक हो गया। ओके, नाउ माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ विच वॉज ए एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर का देखते हैं सी एक्स प्लस डी, इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, सी का डेरिवेटिव, सी तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और उसके साथ एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 1, प्लस डी बीइंग कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, सो व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ओनली सी, यहाँ पे व्हाट वाज द डेरिवेटिव ओनली ए, इसका मतलब है न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या डेरिवेटिव, यहाँ लिखते हैं भाई, डेरिवेटिव क्या बनेंगे सी एक्स प्लस डी बीइंग द डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखते हैं जी सी एक्स प्लस डी इंटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव वॉज ए माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वॉज सी, ठीक है जी। ओपन द ब्रैकेट्स, इट वुड बी ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी whole divided by cx plus d whole square. Now you can see कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, ए सी एक्स, एक प्लस थी एक माइनस थी, कैंसल्ड आउट, एंड आई गॉट ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई दिस थिंग इन द
डिनोमिनेटर, और ये मेरे पास किस चीज़ का आंसर आ रहा है, ये देखें यहाँ पे तो ये सारा कुछ उन्होंने लिया, ओके नहीं सॉरी, ये डेरिवेशन की जो हमने अभी डिस्कस कर लिया, एंड हियर इज़ द आंसर जो मैंने अभी फाइंड आउट करके दिखाया आपको, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी यू बाई डी एक्स, ये वाला, इसका डेरिवेटिव बिल्कुल उन्हीं ग्राउंड्स पे, बिल्कुल वैसा ही। क्या किया, लुक एट दिस, डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज़, डिनोमिनेटर एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव का, सॉरी न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, राइट, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। हो गया। अब देखिए यहाँ से ही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट वुड बी डेरिवेटिव ऑफ दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए बीइंग कांस्टेंट बाहर आ गया, दिस इज़ एक्स स्क्वायर, राइट। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, और x का फर्दर डेरिवेटिव इज़ 1, इसलिए हम वो नहीं लिखते। सो इट वुड बी 2x इंटू ए प्लस व्हाट इज़ डेरिवेटिव ऑफ b, 0, सो वो ना भी लिखें। दिस वुड बी डेरिवेटिव ऑफ दिस न्यूमिनेटर, और इस टर्म का डेरिवेटिव क्या बनेगा, दिस इज़ ए स्क्वायर प्लस डी। सो ए बीइंग कांस्टेंट बाहर रहा, एक्स स्क्वायर मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 2x प्लस डी का डेरिवेटिव वी ऑल नो कांस्टेंट है तो 0, तो इधर से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2ax। let us check this out on the next slide. Okay, look at this, बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने बताई, इसका भी 2ax, इसका भी 2ax, ओपन द ब्रैकेट्स, 2ax बीइंग कॉमन बाहर ले लिया, ना भी लें आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। ओके, यू कैन सी ax स्क्वायर कैंसल्ड आउट, सो इट इज़ 2ax इंटू d माइनस बी, दिस इज़ द आंसर हियर। ओके, लुक एट दिस, ये आंसर डी यू बाई डी एक्स और ये आंसर डी वाई बाई डी एक्स। आपने फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी यू बाई चेन रूल। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स विल बी मल्टीप्लाइड विद व्हाट, यहाँ मुझे डी यू चाहिए, ये इसकी वजह से यहाँ डी यू चाहिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी एक्स। क्लियर? अब हमारे पास डी यू बाई डी एक्स है, डी एक्स बाई डी यू नहीं है, सो वी वुड रेसिप्रोकेट दिस टर्म, यानी न्यूमिनेटर को ऊपर और डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे और न्यूमिनेटर को नीचे ले आएंगे, लाइक दिस। रेसिप्रोकेट कर दिया, ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। अब मज़े की बात है कि ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन, कोई कटिंग नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप इसको चाहे ऐसे ब्रैकेट्स में करके लिख लें, यानी ए डी माइनस बी सी ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट डिवाइडेड बाई ये दोनों ब्रैकेट्स कंबाइन करके, कंबाइन इन द सेंस ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर इंटू 2ax इंटू डी माइनस बी, ठीक है, डी माइनस बी ऐसे लिख लें। नहीं तो अगर आप ऐसे भी रहने देंगे इट वुड बी फाइन, लेकिन वो थोड़ा इनकम्प्लीट लगता है। आप इसको न्यूमिनेटर में भी 2 ब्रैकेट्स बना के लिख लें, मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और डिनोमिनेटर में भी इनको ब्रैकेट्स में लिख लें। सो दैट वुड बी योर आंसर, दैट्स इट। ठीक है जी, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इम्प्लिसिट फंक्शंस इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। सी यू देन।